خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، اور سب سے اہم خبر جو اس وقت انڈیا پاکستان سے متعلق کہ نواز شریف صاحب اس وقت نئی دلی میں ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے ابھی 1 to 1 نریندر مودی صاحب سے، اور بہت سے ایشوز جن کا ابھی اس انداز میں ظاہر ہے اس کا آغاز یا اس قسم کے مذاکرات کا آغاز تو نہیں ہوا، لیکن امید ہے کچھ دیر میں اگر پریس کانفرنس یا کوئی اسپوکس مین بتائے گا کہ اس ملاقات میں کن کن نکات پہ بات چیت ہوئی تو آگے چل کے ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا ایشوز آگے چل کے جو ہے وہ کو ڈسکس کیا جائے گا۔ بہرحال ایک بہت بڑا کام یا ایک بہت بڑی ایک جو آفر یا دعوت دی گئی تھی، ایک بہت بڑا ایک کھیل یا ایک سیاست جسے کہہ سکتے ہیں، وہ ایک طرف سے پیغام آیا کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم وہاں پر آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آتے تو ایک تاثر یہی ہوگا کہ ہماری طرف سے تو بالکل دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا، لیکن پاکستان یا پاکستان کی جو قیادت ہے وہ انڈیا پاکستان کے جو معاملات یا مختلف مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا یا وہ سیریس نہیں ہے، اور ہمیشہ جو تخریب کاری ہے اس میں پاکستان ملوث رہا ہے۔ تو ایک تاثر تو یہ جاتا ہے اگر پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ انڈیا نہ جاتے، لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر وہاں پر گئے، اور ایک یہ بھی تاثر انہوں نے غلط کر کے دکھایا کہ اب پاکستان کے جو وزراء اعظم ہیں وہ کسی نہ کسی ادارے کے ماتحت ہیں۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شاید پاک فوج یا ISI کے جو ایسا ادارہ ہے وہ پاک بھارت جو تعلقات ہیں، اور خاص طور پہ جو سویلین جو وزراء اعظم جب بھی آتے ہیں تو اس میں ان تعلقات میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ 99 میں جب واجپئی صاحب یہاں پر آئے اور اس کے بعد پھر کارگل ایشو ہوا، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ایک فوجی قیادت اور اس وقت کے جو جرنیل تھے مشرف صاحب ان کی ایک غلطی کی وجہ سے ہوا۔ تو لیجئے انڈیا پاکستان کی سیاست کی بات ہم کریں گے۔ 22 مئی کو یہاں پر الیکشن ہوئے، اور یورپین پارلیمنٹ میں ہمارے ایک بار مہمان بھی تھے جناب افضل خان صاحب، اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں؟ جی آپ کی دعائیں خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ ممبر یورپین پارلیمنٹ ماشاءاللہ منتخب ہو گئے ہیں، تو عوام کی جو محبت ہے اور جو اتنا زیادہ اور بڑا مینڈیٹ آپ کو ملا ہے، کیا خیالات ہیں آپ کے؟ جی پہلے تو آپ کو بھی اور آپ کے سب ویورز کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ میں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ ہمارا 9% میں بہت اچھا رہا ہے، ہم نے پورے گریٹر مانچسٹر میں جیتی ہے، اور اسی طرح دوسرے جو اپنے لوگ یہاں پہ بھی آباد ہیں لیبر نے ٹاپ کیا ہے۔ تو میں سب عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ہمیں سپورٹ کیا ہے، اپنی قیمتی ووٹ ہمیں دیا، تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کے جو تمنا ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، ان کے مطابق کام کریں انشاءاللہ۔ اچھا تو خان صاحب کیا توقعات یا لوگوں کو اب آپ پہ کیا توقعات ہیں، یا کیا ایک دو کام جو ہیں وہ جاتے سال آپ جو ہے ان کو اٹھائیں گے یا وہ آپ ڈسکس کریں گے پارلیمنٹ میں؟ جی میں ٹرین میں ہوں، اگر لائن کٹ جائے تو سمجھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا بیسکلی تو یہی ہے جی، آرڈنری فیملی تو یہی چاہتی ہے کہ 4-5 سال سے جو اسکیمز فیملی پہ آ رہا ہے، مختلف کٹس آ رہے ہیں، انکم کی کوئی ویجز امپروومنٹ نہیں ہو رہی، اور جتنے بھی فیملی کے خرچے ہوتے ہیں ہر روز بڑھ رہے ہیں، تو یہ جو اسکیمز ہے اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اکانومی بیس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ یورپ پہ جا کے وہاں سے فنڈنگ کا بھی کیا جائے، مینوفیکچرنگ کی طرف سے دھیان دیا جائے، ینگ لوگ ہمارے ہیں ان کے اپرچونٹیز جاب پہ کام کیا جائے۔ تو انشاءاللہ وعدہ ہے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جتنا ہو سکے گا ضرور کریں گے۔ اور خان صاحب آخر میں، کیونکہ ظاہر ہے آپ ٹرین میں ہیں، یہ نہ ہو کہ کال ڈراپ ہو جائے، آئندہ کی جو الیکشن آ رہے ہیں، جو یہاں کی پارلیمنٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، اس پر ان دنوں جو الیکشن ہوں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ لیبر پارٹی جو ہے جی بیسیکلی مکس میسج جا رہے ہیں کہ جب آپ یورپین الیکشن دیکھتے ہیں تو اس وقت UKIP نے ملک میں ٹاپ کیا ہے، صحیح ہے، دوسرے نمبر پہ لیبر پارٹی آئی ہے، اور تاریخ میں پہلی بار کنزرویٹو پارٹی جو ہے جو ٹوری ہوتے ہیں یہ تیسرے نمبر پہ آئے ہیں۔ جی تو پہلے تو یہی ہوتا ہے لیبر ٹوری کا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب مین الیکشن آئیں گے تو یہ UKIP کی جو ہوا ہے وہ بہت کم ہو جائے گی، اور یہ تیسرے پہ نہیں، چوتھے پنجویں نمبر پہ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اصل مقابلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے لیبر اور کنزرویٹو پارٹی کا۔ ٹھیک ہے، ہمارے عوام کو یہی سوچنا پڑے گا کہ ہمارے مفاد کے لیے ہماری کمیونٹی کی جو ضروریات ہیں وہ کون سی پارٹی بہتر ہے۔ میں تو لیبر پارٹی سمجھتا ہوں بہتر ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ لیبر پارٹی ہی ہے جو عام لوگوں کا رکھے گی،
तो टोरी तो हमेशा अमीर तबके का ध्यान रखती है। बिल्कुल। और खान साहब, जैसे आपने उस दिन जब आप हिदायत टीवी पे आए तो बीएनपी के हवाले से आप बता रहे थे कि हमारे लोग कम निकलते हैं वोट देने, तो इस बार माशाल्लाह आपका रिस्पांस काफी अच्छा, लोगों ने कास्ट भी किए वोट और बीएनपी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया, तो क्या कहेंगे इस पर? हमने देखा है जी, मैं समझता हूँ कि ये कोशिश की गई थी, बहुत से लोग जिसमें थे, हटाया फिर टीवी है वो भी इन्वॉल्व था, इंकरेजमेंट किया गया, तो हम देख रहे थे जो मित्र फैशिस्ट था उसकी जो लाखों में वोट होते थे इस बार हजारों में वो आ गया और वो लूज भी हो गया। यही हमारी एक कंपेन थी। आज यूट्यूब वाले हैं इनकी भी यही सोच है, सिर्फ ये है कि ये सूचना होते हैं और अपनी जबान को संभाल के बात करते हैं, लेकिन जो फिलॉसफी है ये इसी तरह मिलती है। ठीक है, तो इनसे भी हमें लड़ना पड़ेगा। तो वही तरीका होता है जब आप खुद मैदान में आए, हमारे लोग इसमें हिस्सा भी लें और वो अमानत होती है उसको सही इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने टाइम दिया और इंशाल्लाह फिर दोबारा एक बार फिर आपके बहन भाइयों सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जनाब अफजल खान साहब थे मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट। नाज़रीन, और 22 मई को जो इलेक्शन हुए यहाँ पर, जो लोकल इलेक्शंस थे, यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, और यहाँ हेडलाइन भी है आज के अखबार में कि पाकिस्तानी निजात अफजल खान, सज्जाद करीम और अमजद बशीर कामयाब, और यूकिप जैसे वो खान साहब भी बता रहे सर फहरिस्त रही। और यूकिप के हवाले से ये बताया रहे थे खान साहब कि ये बीएनपी टाइप ही इनकी सोच जो है आगे चल के तकरीबन एक जैसी है, थोड़ी सी तासुब पसंदी है इसमें, लेकिन ये जब बात करते थोड़ा सा सुलझे हुए अंदाज में करते, और जो एक थोड़ी सी हरदर्मी थी जो बीएनपी में थी या बुनियाद परस्ती थी, उस हवाले से थोड़ा सा ये उस अंदाज का जेस्चर नहीं दिखाते, लेकिन आगे चल के इनकी सोच जो है वो इलाकाई तासुब पर ही मबनी है। तो इनसे काफ़ी एक अच्छा खासा मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि लोकल इलेक्शंस में और यूरोपियन इलेक्शंस में काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है यूकिप को। तो इस हवाले से अब आइंदा के जो इलेक्शन हैं, देखते हैं कि टोरी पार्टी जो इन इलेक्शन में तीसरे नंबर पे आ गई, और ये पहली बार हुआ है कि जो दो बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पे आई, और यूकिप ने उसका वो मुकाम हासिल किया है। तो इस हवाले से इलाकाई सियासत पे भी बात करते रहेंगे, और हम माशाल्लाह कि पाकिस्तानी निजात जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो कम्युनिटीज़ यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने के लिए आए, और आगे चल के फिर यहाँ का जो सियासी मैदान है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस हैं, लॉर्ड नज़ीर अहमद है, सईदा वासी साहिबा हैं, और अफजल खान साहब, सज्जाद करीम, अमजद बशीर माशाल्लाह पार्लियामेंट में पहुँचे हैं। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है यहाँ ऐसे लोगों की कि जो एक वक्त में परदेसी कहे जाते थे, या एक वक्त में हमारा यहाँ पर उस अंदाज का सिलसिला नहीं था, लेकिन अब जब से टाइम गुजर रहा है, जनरेशन ने यहाँ पर अपने कदम जमा लिए हैं, तो यहाँ का जो एक अहम तरीन जो एक सिलसिला है सियासी मैदान में अपना रोल अदा करने का, तो उसमें भी बढ़ चढ़ के यहाँ के लोगों ने हिस्सा लिया, और चंद नाम ऊपर आए हैं, और पाकिस्तानी और इंडियन और एशियन जो निजात जो लोग हैं उनकी ये सब की बहुत बड़ी कामयाबी है। और ख़ान साहब ने ये भी बताया कि मैं ट्रेन में था, ये ना हो कि लाइन ड्रॉप हो जाए, तो वो एक आम एक तौर पे होता है ना कि जो मेंबर बन जाए तो वो बात ही नहीं सुनता, या वो किसी की कहे में नहीं आता, या उसकी मुलाकातें उस अंदाज से कम हो जाती हैं जो पहले इलेक्शन से होती हैं। तो उन्होंने वाज़ेह बता दिया कि मैं ट्रेन में था, कहीं ज़ाहिर सफ़र पे होंगे, तो उनका पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने टाइम निकाला, और हिदायत टीवी नाज़रीन का एक बार फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। तो लीजिए नाज़रीन, सबसे अहम बात ये हो गई यहाँ के इलेक्शन की। चलते हैं दोबारा इंडिया और पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई नई दिल्ली में, तो इस वक्त हैंडशेक की जो तस्वीरें हैं वो भी आई हुई हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब की और जो 1-to-1 मुलाकात हुई उस हवाले से बहुत से तबसरा निगार वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी पेशरफ्त है, बहुत अच्छा आगाज़ है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन मुसलमानों के लिए एक बीएनपी का एक सिलसिला, या उनकी बेहतरी वो कितनी करेंगे या करना चाहेंगे, ये बहुत बड़ा अभी तक सवाल निशान है। तो कल उन्हीं के हल्फ बर्दारी के दिन ही मुजफ्फरनगर, फैज़ाबाद, सहारनपुर में शरपसंदों के मुसलमानों पर हमले हुए, और उन ख़ास इलाकों में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। और जो एक इंतहा पसंद जमात है तंजीम है शिवसेना, उनके भी रुकन जो है, जब सबसे पहले उनको पता चला कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को दावत दे दी गई है, तो उन्होंने उस हल्फ की जो तकरीब थी उसमें आने से इनकार किया। लेकिन आखिर में बताया जाता है कि अद्दू ठाकरे जो है वो आने में या उसमें रजामंदी उनका इजहार किया, और वो उस तकरीब में आए। तकरीबन 4-5 हज़ार लोग थे, और बहुत अच्छी एक तस्वीर या जेस्चर था, उसमें साबिका प्राइम मिनिस्टर्स भी थे, और वो काम कर दिखाया जो
मनमोहन सिंह साहब ने 10 साल में नहीं किया। शायद वो यही डरते रहे, हिचकिचाते रहे। उनके एक हारने की वजह ये भी है कांग्रेस की कि वो अपने मजबूती या उन्होंने कोई ऐसे बोल्ड स्टेप नहीं लिए जो उनको लेना चाहिए थे, शायद अपोजिशन के डर में, या उनको शायद वो ये अक्सरियत भी हासिल नहीं थी कि वो तनहा कुछ फैसला कर पाते। तो अरसा 10 साल से मनमोहन सिंह साहब और कांग्रेस जो है वो इंडिया पे हुक्मरान रही, लेकिन पाकिस्तान से मुतालिक जो उनका कोई दौरा है, पाकिस्तान की जो दावतें बार बार देते रहे, और इवन पिछले साल जब नवाज शरीफ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर बने थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी दावत दी गई तकरीब हल्फ बर्दारी में आने की, लेकिन मनमोहन सिंह साहब ज़ाहिर है वो अपने इलाक़ाई तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और फूंक फूंक के कदम रखते थे और डरते थे शायद कि अगर वो पाकिस्तान चले गए तो ये बीजेपी और दीगर जो उनकी जमातें हैं लाख वाली, वो ईंट से ईंट बजा देंगी। तो इसी डर और खौफ की वजह से 10 साल जो है वो कांग्रेस जो है वो बिल्कुल पीछे पीछे रही। और बीएनपी जो कही जाती है एक थोड़ी सी इंतहा पसंदाना सोच है, काफ़ी एक तासुब रखे जाने वाली सोच है उस जमात में कि वो मुसलमान जो इलाक़ाई तौर पे हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जो मोदी साहब की इससे पहले बयानात थे कि उनको उन्हीं की ज़ुबान उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, तो ये लव लेटर का सिलसिला बंद होना चाहिए जो इससे पहले कांग्रेस की जमात कुछ ना कुछ अगर खतूत लिखती रही। तो इस हवाले से ये काफ़ी एक हार्ड एक स्टांस था बीएनपी अपना बीजेपी की तरफ से, तो ये बहुत पीछे आ गया और बिल्कुल स्टांस बिल्कुल यकसर तब्दील हो गया जैसे ही नरेंद्र मोदी साहब की जमात ने अक्सरियत हासिल की। तो इसकी एक वजह यह है कि अब वो तनहा उनको किसी इलाक़ की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी मजबूत वो एक वज़ीर आज़म है और अब वो तनहा फैसले भी कर सकते हैं। जैसे इससे पहले वाजपेयी साहब भी मीनार पाकिस्तान आ गए और उन्होंने मीनार पाकिस्तान खड़े होकर ये ऐलान किया कि अमूमन अक्सर ये कहा जाता है कि हकीकी तौर पे इंडिया ने पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया, तो लीजिए मैं मीनार पाकिस्तान पे आके ये कहता हूँ कि पाकिस्तान एक हैसियत है, उसका एक वजूद है और इसको हम तस्लीम करते हैं। तो उनका आना वहाँ पे एक बहुत बड़ा उन्होंने एक जेस्चर, एक पैगाम दिया था उस वक्त भी। और इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं उनका भी यही पैगाम था कि ठीक है जो इलेक्शन से पहले की ज़ुबान थी वो थी, लेकिन अब बहैसियत एक पड़ोसी के इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे रखे जाएं, लेकिन उसके लिए बहुत से अभी जो हर्डल्स हैं, बहुत से ऐसे काम होना बाकी है। और सबसे बड़ा जो काम है वो कश्मीर का मसला है। कुछ जो कश्मीरी रहनुमा है मीरवाइज़ उमर फ़ारूक और कुछ दीगर रहनुमा, उन्होंने इस मुलाकात का खैर मकदम किया है, लेकिन वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, ज़ाहिर इन इलेक्शन में भी वहाँ का टर्न आउट काफ़ी कम रहा। और जब बहुत ज़्यादा तासुब कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी दिखाया जाए कि कोई भी अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद ना कहे, या अगर पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच भी होता है तो वो कश्मीरियों के लिए भारी पड़ता है या मुसलमानों पे भी इवन भारी पड़ जाता है। तो ऐसी जो सोच है वो वहाँ के गली कूचे और यहाँ मुजफ्फरनगर, फैज़ाबाद, सहारनपुर की जो गलियाँ हैं, गाँव हैं, देहात हैं, वहाँ पर अगर मुसलमानों को फंसाने के लिए, मुसलमानों की नफ़रत में कुछ इस किस्म की बातें करने वाले उनको फ्री हैंड ही मिल जाए कि लीजिए हमारी अब हुकूमत आ गई। जैसे यहाँ पाकिस्तान में अब हमारे रहनुमा कहते हैं कि सूबे पंजाब में जो मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो आज के इब्ने ज़ियाद की हुकूमत है, तो यहाँ के सूबे पंजाब में भी एक खुली छूट मिली हुई है कि ठीक है जो भी लश्कर जंगवी का है, किसी भी तकरीबकार गिरोह से ताल्लुक़ है, उसको खुली आज़ादी है, कोई कैद, कोई जेल, कोई उसके लिए हर्डल नहीं है। तो अगर यही सिलसिला इंडिया में हो कि कोई भी दहशतगर्द हिंदू ग्रुप है, कोई भी इंतहा पसंद है, युद्धिया बनाने वाले, वो भी उनके बैनर्स उनके आपने देखे होंगे इलेक्शन कैंपेन में, तो वो चढ़ दौड़े मुसलमानों की अक़लियत जो भी वहाँ पर कुछ इलाकों में है, तो ये एक बहुत बड़ी एक बदनसीबी होगी। और फिर ये जो एक 5 साल के लिए जो उनकी हुक्मरानी है वो बहुत ही कड़ा वक्त और कड़ा इम्तिहान साबित हो सकती है इंडियन मुसलमानों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बार बार हेडलाइंस और बार बार जो एक जेस्चर दिया जा रहा है कि ये बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे, मोदी साहब जो हैं अब वो तब्दील एक अपने आप को एक तब्दील शुदा एक रहनुमा दिखाकर या साबित करके वो अपना टाइम गुजारेंगे, तो ये देखते आने वाला वक्त बताएगा। एक चीज़ सार्क ममालिक के जो सरबराहान को बुलाना मकसद ये भी था कि शायद जो चीन की एक हुक्मरानी कह लें या एक तसल्लत कह लें या थोड़ी सी एक धाक है उस इलाके में, उसको भी कम करने की एक कोशिश कह सकते हैं। और ज़ाहिर है जो एक असल मुकाबला या जिसे कह सकते हैं मुआशी तौर पे जो असल मुकाबला है वो इंडिया और चीन का ही है। तो चीन को थोड़ा सा अलग रख के बाकी 7-8 जो छोटे ममालिक हैं उनको साथ रख के उनको अहमियत दे के एक अलग सा जेस्चर दिया है। और नरेंद्र मोदी साहब भी जो पहला बैरूनी मुल्क दौरा करेंगे वो भी जापान का करेंगे, तो वो भी जापान और चीन आपस में ज़ाहिर है इतने अच्छे उनके ताल्लुकात नहीं रहे हैं, तो फिर इक्तिसादी और मुआशी तौर पे
चाइना के उलट जो भी काम होंगे या चाइना के उनके तौर पे थोड़ा सा तसल्लुत कम करने के लिए जो भी काम होंगे वो शायद मोदी साहब करेंगे। तो ये उनका, और सुषमा स्वराज जो है वो भी वज़ीर ख़ारजा बनी है, तो देखते हैं कि वो पहले भी इससे बहुत बड़े मनासिब पे रही हैं, तो देखते हैं कि बहुत से सीनियर लोग दोबारा मनासिब पे आए हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस और पूरे जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें कितनी बेहतरी आती है पता तभी चलेगा। इस वक्त तो तमाम स्मूथ सेलिंग है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि जब पक्की सड़क के ऊपर गाड़ी चल रही हो, कोई हचकोला नहीं है, समझे मोटरवे पे गाड़ी है, लेकिन पता उस वक्त चलेगा खुदा न खास्ता कि इंडिया में कोई ऐसी तकरीबकारी हो जाती, कोई ऐसा मुंबई अटैक जैसा या नई दिल्ली जो पार्लियामेंट में हमला हुआ, कोई इस किस्म का कोई अगर कोई दोबारा अटैक होता है, कोई दोबारा हमला हो जाता है किसी की तरफ से भी, तो वो आके जब मलबा पाकिस्तान पे गिरेगा या उस वक्त हुकूमत का क्या स्टांस होगा, तो ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त तो दोस्तियाँ, इस वक्त तो तमाम जो उनकी आओ भगत है, फ़ोटो सेशन है, हैंड शेक जो है काफ़ी गर्मजोशी नज़र आ रही है, मोहब्बतें हैं एक दूसरे पे निछावर की जा रही, लेकिन पता तब चलेगा जब ये गाड़ी थोड़ी सी कच्चे रोड पे उतरेगी, उस वक्त पता चलेगा जब हचकोले आएंगे, खड्डे आएंगे और थोड़ा सा काम ख़राब होगा। उस वक्त ये जो मुदब्बर सियासतदान और इस वक्त जो आला सोच के हामिल हमें दोनों वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं, उस वक्त इनका तदब्बर, इनकी सोच और इनकी जो सियासत है वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आएगी। और जी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, तो ज़ाहिर है जो मुलाकात उनकी 45 मिनट्स के लगभग थी, तो उस हवाले से वो कुछ बताएंगे कि इस मुलाकात में क्या हुआ और आइंदा क्या सेक्रेटरी ख़ारजा तक सतह पर कोई मुज़ाकरात का ऐलान होना है और वज़राए ख़ारजा मिलेंगे। और वसीम अकरम का और नजम सेठी का भी ये कहना था और दीगर, सुनील गावस्कर इंडिया के जो साबिका क्रिकेटर हैं उनका भी कहना है कि चले क्रिकेट का ज़रूर आगाज़ होना चाहिए। तो ये अब छोड़ छाड़ के हम सारे मसले मसाइल एक क्रिकेट के ऊपर जब बात हो जाती है कि ठीक है क्रिकेट का मैच हो जाए तो शायद यही दोस्ती है, तो ये क्रिकेट के मैच तो होते रहेंगे, वर्ल्ड कप में भी अभी होना है, क्रिकेट के मैच होते रहेंगे, लेकिन जो असल मसाइल हैं अगर वो हल ना हो तो ये क्रिकेट वहीं धरी के धरी रह जाएगी। तो ये जो क्रिकेट के मैचेस के लिए जो उम्मीदें हैं या इतनी, यही एक नज़र आए कि यही हमारा एक पैमाना है हमारे बेहतरीन ताल्लुकात का, तो ये भी गलत बात है, खाम ख्याली है कि लीजिए जी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो गया तो हम दोस्त बन गए और बस जी। सबसे पहले जब रुकावट भी डाली, ये भी एक अजीब बात है कि ठीक है जो भी मैचेस हैं उनको रोकना भी नहीं चाहिए, जितने भी अगर बुरे हालात भी चल रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो स्केड्यूल है आईसीसी का, अगर उसमें कोई मैचेस है तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते रहने चाहिए, लेकिन रोक भी लगाई जाती है तो वो मैचेस पे लगाई जाती है, तो आगाज़ भी जहाँ से होता है वो भी क्रिकेट मैचेस से ही होता है। तो ये भी एक अजीब एक मंतक है हमारे दोनों ममालिक की जो खारजा पॉलिसी बनाने वाले हैं या जो कभी कभार जो ताल्लुकात जोड़ते हैं क्रिकेट से ही जोड़ते हैं और टूटते हैं, तो वो भी क्रिकेट से ही टूटते हैं। तो देखते हैं कुछ सीरीज़ का भी आगाज़ या कुछ उस हवाले से भी खबर आती है या नहीं आती। बताया गया कि जामा मस्जिद नई दिल्ली और किले की भी सैर करवाई गई है नवाज शरीफ साहब को। ज़ाहिर टाइम कम था, आगरा वगैरह वो नहीं जा सके, लेकिन कुछ ना कुछ सैर सपाटा मियाँ साहब का और ख़ातिर मदारत वहाँ पे की गई है। तो ये कुछ खबरें थी। आज के अखबार में भी कुछ इसी किस्म की हेडलाइन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मनमोहन सिंह के बराबर वाली नशिस्त दी गई और राष्ट्रपति भवन के ग्रीन पार्क में मुनक्कदा तकरीब में सदर प्रणब मुखर्जी ने मुंतखब भारतीय वज़ीर आज़म से हल्फ लिया। तो ये हेडलाइंस है। यहाँ की जो यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन थे उसकी खबर है, वो मैंने आपके साथ शेयर की। और मुंतखब जो यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन हैं सज्जाद करीम साहब का एक बयान छपा है। उनका कहना है कि EU से मसला कश्मीर हल करवाना पहली तरजीह होगी। तो ये ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफ़ी उम्मीद ये रखते हैं कि शायद यूरोपियन पार्लियामेंट से ये मसला कश्मीर हल हो जाए, लेकिन देखा जाए तो ये अभी तक UNO से भी हल नहीं हुआ। तो इसके लिए यूरोपियन पार्लियामेंट क्या किरदार अदा कर सकती है शायद वो बेहतर तौर पे बता सकते हैं, लेकिन ये मसला ऐसा मसला है कि UNO यूनाइटेड नेशंस जो है ये भी इस मसले में अब हाथ डालना, ये बल्कि बड़े बड़े ममालिक जो है वो यही कहते हैं कि आपका अपना आपस का मामला है या आप आपस में सॉल्व कर लें। तो ये किस तरह से यूरोपियन पार्लियामेंट हल करेगी कश्मीर का मसला, बात उठाएगी ज़रूर, लेकिन हल ज़ाहिर है ये इंडिया पाकिस्तान और उन कश्मीरी अवाम नहीं हल करना है। जब तक ये नहीं होगा ये बाहर के ममालिक या बाहर की फोर्सेस प्रेशर ज़रूर डाल सकती हैं, लेकिन असल हल की तरफ जब जाना है तो इन्हीं तीनों फरीकों ने लेके जाना है। जी, नवाज शरीफ साहब का कल जो एक बयान था, ऐलान था कि अमन का पैगाम लाया हूँ, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल मुमकिन है। बिल्कुल, ये अगर आप शुरू से ही देख लें, कभी भी हमारे जब मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की,
تو وہ یہی کہتے ہیں ہم کا پیغام لے کے گئے ہیں مذاکرات سے مسائل کا حل ہوگا، لیکن یہ مذاکرات میں تعطل کیسے آ جاتا ہے؟ وہی وہ کچے روڈ والی بات ہے کہ جب کچا روڈ شروع ہوگا تب پتہ چلے گا، کوئی خدا نخواستہ ہنگامہ، کوئی بھی توڑ پھوڑ، کوئی بھی اس قسم کا دھماکہ ہوا خاص طور پہ انڈیا میں، تو وہ ملبہ پاکستان پہ اگر گر گیا تو پھر وہ تعطل آ جائے گا۔ یہ تمام جو چیزیں اب مل رہی ہوئی ہیں، تمام جو آپس میں بھائی چارے نظر آ رہے ہیں، وہ بالکل جو کہ تم وہیں پہ وہیں رہ جائیں گے، اور وہ جو تعطل آتا ہے ایک روایت چلی آ رہی ہے اسی کی طرف ہم دوبارہ گر سکتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ۔ ایک افسوسناک خبر، سعودی عرب میں ٹریفک حادثہ، 5 کشمیریوں سمیت 17 افراد جاں بحق ہو گئے، اور یہ ریاض میں مزدوروں کی بس پل سے نیچے گر گئی اور پل کے نیچے کار میں سوار 4 افراد بھی ہلاک ہو گئے، اور ہلاک ہونے والوں میں وہ شامل۔ تو یہ دیکھیں حادثات اور روزانہ ناگہانی آفات، حادثات اس قسم کے کہ کسی اب جو پل کے نیچے کوئی گاڑی کھڑی ہے ان کو کیا پتہ کہ اوپر کوئی جو ہے وہ بس ان کے اوپر آ کر گرے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس قسم کے حادثات سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور ہمیں اپنے تئیں یہ نہیں سمجھے کہ یہ خبر ہم نے کسی کی پڑھی ہے، یہ حادثات، یہ واقعات یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور اپنی اپنی موت کی، اپنے جو اعمال کو بڑھانے کی ہمیں ہمیشہ تیاری رکھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کی خبریں پڑھتے پڑھتے خود کسی دن خبر بن جائیں، تو اس کا انتظار کیے بغیر ہمیں اپنے اعمال کا ضرور محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے، چیک کرتے رہنا چاہیے۔ ایسے راتیں، ایسے ایام جب آئیں تو اپنے آپ کا محاسبہ ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے، ہم بھی کسی دن خبر بن جائیں، اور پھر آگے جو ہے وہ ہمارے اعمال کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو اس سے پہلے ہمیں یہ تمام عبرتناک جو خبریں ہیں اس سے عبرت حاصل کر کے، سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو ٹھیک اور اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ جی، یہاں کی کچھ مغربی میڈیا میں خبریں ہیں کہ مغربی میڈیا میں نواز شریف کے دورہ بھارت کی بہترین کوریج کی گئی، یہ خبر تھی۔ اور خورشید شاہ صاحب کی ایک ہیڈ لائن چھپی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت نہیں بلکہ جمہوریت کے ساتھ ہے۔ تو جمہوریت کے حوالے سے کل میں نے آپ سے جیسے بات کی کہ وہی جمہوریت ہے، بلدیاتی انتخابات کوئی دور دور تک پتہ نہیں، مہنگی گاڑیاں جو ہیں وزیر اعظم خرید رہے ہیں، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، کتنے نیچے والے جو عام لوگ ہیں بیچارے ان تک جو ہے وہ انصاف کی فراہمی ہے وہ یقینی بنا سکتے ہیں، کتنے انداز میں جو ہے وہ رشوت دے کے اگر کوئی غریب بندہ کوئی منصب یا کوئی نوکری حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ جمہوریت کے جو ایک ہم پھل حاصل کر رہے ہیں، اور بدنصیبی ہے کہ پیپلز پارٹی یا جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے وہ بھی حکومت کے ساتھ ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ تو کیا یہ اصل جمہوریت ہے؟ کل ایک ڈاکٹر کو تھپڑ مار دیا، کسی پولنگ ایجنٹ کو تھپڑ مار دیا، جو اوپر ہیں وہ کوئی بھی اگر وارڈن ہے، پولیس وارڈن ہے، اس کو تھپڑ مار دیا، بلکہ کوئی بھی راستے میں آ گیا اس کو کچل کے گزر گئے۔ تو یہ سلسلہ اگر یہی جمہوریت پسند لوگوں کا یہ طور طریقہ ہے کہ ٹیکس انہوں نے نہیں دینا، جائیدادیں ان کی پاکستان سے باہر ہیں، بچے ان کے باہر ہیں، حکمرانی کرنی ہے تو وہ پاکستان میں کرنی ہے، عام زندگی گزارنی ہے تو وہ پاکستان سے باہر گزارنی ہے، تو اگر یہی جمہوریت ہے تو پھر یہ ان دونوں کا ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے پاکستانی عوام کے لیے۔ پچھلے 5-6 سال بھی ہم نے دیکھے، اور یہ جو آئندہ کا بلکہ 1 سال ہی ہم نے دیکھ لیا نواز شریف صاحب کا یہ جمہوری سال، کہ آپ نے اتنا قرضہ لے لیا کہ جس کشکول کو توڑنے کے لیے آپ دعوے کر کے آئے تھے، اتنا قرضہ لے لیا کہ اب شاید 2-3 جنریشنز لگیں اس تمام قرضوں کو اتارنے کے لیے، اور ابھی 4 سال اس جمہوری 4 سال جو دور کے ابھی 4 سال باقی بھی ہیں۔ یہ بھارت کی ایک اور خبر ہے کہ 2 ٹرینوں میں تصادم 45 افراد ہلاک ہو گئے، یہ بھی افسوسناک خبر، اور باقی کوئی ایسی کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ ناظرین، اب اس وقت بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد جو پہلے اس میں بات ہوئی ہے اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں، اور جو آج عید بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دین کے آغاز کا دن ہے، دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئیں، اور جیسے قربانی کی بات ہوئی تو کل ہی کا دن 28 رجب قربانی دینے والوں کا آغاز بھی ہو گیا، سفر کا آغاز ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے۔ تو جو دین بچانے والے ہیں، دین ہم تک پہنچانے والے ہیں، ان کی قربانیاں دیکھتے ہوئے کیا ہم ان کے احکامات پہ عمل بھی کر رہے ہیں؟ تو بہترین دن ہے، ایک بار سوچیں گے، دیکھیں گے اپنے آپ کو، ٹٹولیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔